ایک رحمت کو اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات کے درمیان بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے، 99 اپنے پاس رکھا ہے اور ایک کو اپنے مخلوقات میں تقسیم کیا ہے، جن میں سے کچھ حصہ ایک ماں کو بھی ملا اور ماں کے پاس جو حصہ ملا ہے اور ان کی جو ہم محبت اور لگاؤ اپنے اولاد کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ اللہ رب العالمین جس کے پاس 99 رحمت ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، انسان خطا کرتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، لیکن جب انسان اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، وہ اپنی شرمندگی اٹھاتا ہے اور رب کے پاس وہ حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں نے غلطی کر دی ہے، تو بندہ اپنے رب کی رحمت کو کسادہ پاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو انسان کے پاس اللہ رب العالمین کی تمام کاج جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ان میں جو رحمتیں تقسیم کیا ہے، یہ ایک ہی رحمت، اور ان میں سے ماں کو ملا، باپ کو ملا، بھائی کو ملا، بہن کو ملا، انسان کو ملا، جانور کو ملا، شرم کو ملا، پرند کو ملا، اور اس محبت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، انسان کے پاس اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دو آنکھ دیا، یعنی اس کے ذریعے سے انسان اپنے سامنے کی چیز کو دیکھ لیتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دو کان دیا جس کے ذریعے سے وہ اپنے آس پاس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو دو ہاتھ دیا، انسان کو دو پیر دیا، انسان کو دل اور دماغ دیا جس کے ذریعے سے انسان بھلے برے کی تمیز کر لیتا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اگر وہ غریب ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ایک مثال، ایک آدمی مانگنے کے لیے آیا اور گھر والوں سے کہا بھائی میں غریب ہوں، لاچار ہوں، مجھے آپ پیسہ دے دیجئے۔ گھر والے نے مجھ کے دیکھا، کہا تجھے میں کیوں روپیہ دوں، تجھے میں کیوں پیسہ دے دوں؟ کہا میں ایک مانگنے والا ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، میں مانگ کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میں مانگ کے کھاتا ہوں، مجھے دے دیجئے روپیہ۔ اس آدمی نے کہا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ چیز ہمیں دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں 10,000 روپیہ دے دوں گا۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تمہارے پاس ہے اس کے وہ ہمیں عطا کر دو، وہ مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں میں تمہیں 10,000 روپیہ دے دوں گا۔ وہ مانگنے والا، وہ سائل، وہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس تو ایک جھولا ہے جس میں تھوڑا سا اناج ہے، تھوڑا چاول اور گیہوں ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، تھوڑا سا مکئی ہے، اور کچھ سکے اس میں ڈالا ہوا، یہی تو میرے پاس ہے۔ اس فقیر نے وہ جھولے کو اتارا، اور اتارنے کے بعد اس آدمی کے حوالے کرتا ہے لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے 10,000 روپیہ دے دو۔ اس آدمی نے کہا نہیں، مجھے تیرا جھولا نہیں چاہیے،
इसके अलावा भी बहुत बड़ी नियामत तुम्हारे पास है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दे रखा है, वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। उस आदमी ने कहा अल्लाह ने तुम्हें 2 पैर दिया, उन 2 पैरों में से एक पैर मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। वो फकीर वो साहिल कहता है नहीं नहीं, मैं अपने पैर को तुम्हें नहीं दे सकता हूं, अगर मैं तुम्हें पैर दे दूंगा तो मैं लवरा कहलाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं मांगने के लिए जा नहीं पाऊंगा, मैं कैसे चलूंगा, इसलिए मैं अपने पैर को 10,000 रुपये के बदले में नहीं दूंगा। उस आदमी ने कहा तुम्हारे पास 2 हाथ है, उन 2 हाथों में से एक हाथ मुझे अता कर दो, एक हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपया दे दूंगा। कहा नहीं मैं तो नहीं दे सकता हूं, 20,000 रुपये के लिए मैं तुम्हें अपना हाथ कटाना नहीं चाहता हूं, मैं हाथ देना नहीं चाहता हूं, अगर मैं हाथ तुम्हें दे दूंगा तो मैं विकलांग कहलाऊंगा, मैं लूला कहलाऊंगा, इसलिए मैं 20,000 रुपये के लिए मैं अपने हाथ को तुम्हें दे नहीं सकता हूं। उस आदमी ने कहा तुम्हारे पास 2 आंख है, तो 2 आंख में से एक आंख मुझे दे दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। वो आदमी इनकार कर दिया कि नहीं मैं तुम्हें आंख नहीं दे सकता हूं, अगर मैं तुम्हें आंख दे दूंगा तो मैं कैसे देखूंगा, मैं काना कहलाऊंगा, मैं लोगों के पास बैठने के काबिल नहीं होगा, लोग मुझे अपने पास नहीं बैठाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें आंख देने से भी इनकार करता हूं, आंख भी मैं तुझे नहीं दूंगा। उस घर वाले ने कहा तुम्हारे पास 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, उनमें से एक की कीमत मैंने लगाई तो 50,000 रुपये हो गया, अगर दोनों की कीमत लगा दी जाए तो 1 लाख रुपया होता है। गोया कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपये की अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी नियामतें हैं। तो मेरे भाइयों में दोस्तों, इंसान के पास अगर कुछ भी नहीं होता, इंसान के पास माल नहीं है, इंसान के पास दौलत नहीं है, इंसान के पास रुपये नहीं है, लेकिन अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी नियामतें इंसान के पास मौजूद है। अल्लाह ने इंसान को 2 आंख दिया जिससे इंसान देखता है, अल्लाह ने 2 हाथ दिया, ये बहुत बड़ी नियामत है। अल्लाह ने इंसान को 2 पैर दिया जिससे वो चलता है, ये बहुत बड़ी नियामत है। अल्लाह ने इंसान को 2 कान दिया जिससे आसपास की आवाज को सुनता है, बहुत बड़ी नियामत है। अल्लाह ने 2 नाक दिया, अल्लाह ने मुंह दिया, अल्लाह ने दांत दिया जिससे इंसान खाना को चिबा के उठाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी नियामत इंसान के पास मौजूद है, लेकिन इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय नाफरमानी करता है कि मेरे पास दौलत नहीं है, माल नहीं है। मेरे भाइयों में दोस्तों, कुरान कहता है लइन शकरतुम लजीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ इंसान, मेरी बहुत बड़ी नियामत तुम्हारे पास है, तुम अगर शुक्रिया अदा करोगे, मैं तुम्हें कोई चीज अता करता हूं, कोई चीज तुम्हें देता हूं, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं और ज्यादा बढ़ा दूंगा, और ज्यादा तुम्हें दे दूंगा। वलइन कफरतुम, अगर तुम इनकार करोगे, मेरी नाशुक्री करोगे, मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ोगे, तो मेरी अजाब सख्त है। तुम्हारे पास जो भी नियामतें हमने दे रखी है, उन तमाम नियामतों को मैं छीन सकता हूं, उन सारी नियामतों को छीन करके मैं तुम्हें जलील कर सकता हूं, खा कर सकता हूं। अगर तुम मेरी नियामत की शुक्रगुजार बनोगे, अगर मेरी शुक्रिया अदा करोगे, तो लाजीदन्ना को मैं तुझे और ज्यादा बढ़ा दूंगा। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जो कुछ भी हमें दिया है, अल्लाह की लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की शुक्रिया अदा करनी चाहिए, अल्लाह की नियामतों को शुक्रिया अदा करनी चाहिए। और हदीसों में भी आया है कि जिन कौमों ने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया, ना शुक्री की अल्लाह उनसे छीन लिया। मेरे भाई मेरे दोस्तों, हदीस में आया है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बनी इस्राइल में 3 आदमी था, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तीनों आदमियों की आजमाइश चाहता था। अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, जाओ बनी इस्राइल के 3 आदमी है, उनमें से पहले आदमी जो अब्रस था, जो कोढ़ी का बीमार होने था, जाओ। फरिश्ते को अल्लाह ने उस आदमी के पास भेजा और कहा, भाई मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम कैसी हो, क्या परेशानी में हो, कैसे हो? कहा मैं बहुत परेशान हूं, मैं बीमार हूं, मुझे जो कोढ़ी का बीमारी है, लोग अपने पास बैठाना दोबारा नहीं करते हैं, मुझसे लोग घिन करते हैं। मैं चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी तरीके से हमारी कोढ़पन को दूर कर दे, मेरी बीमारी को दूर कर दे, मुझे सफाई कामिल आजिल अता फरमाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार बनूंगा।
उस फरिश्ते ने उनकी जिस्म पे दस्ते सफा को फिर दिया, वो आदमी ठीक हो जाता है, उसका जिल्द, उसका चमड़ा बिल्कुल अच्छा हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है। और फिर उसे सवाल करता है, कौन सा माल तुम्हें चाहिए, कौन सा माल की तुम ख्वाहिश रखते हो? उस आदमी ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक ऊंट हो जाए, मैं उसे पालूं और पोसूं और बड़ा करूं, और उसी के जरिए से अल्लाह मुझे मालदार बना दे, इसीलिए यही चीज मैं चाहता हूं। उस फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से ये गाभिन ऊंट अता कर दिया, दे दिया, और दुआ भी दी कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मालदार बनाए। और ये दुआ दे करके वो फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। बनी इस्राइल के तीसरे आदमी के पास जाता है, दूसरे आदमी के पास जाता है। वो आदमी गंजा था, सर में बाल नहीं था। उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, तुम्हारा क्या हाल है, क्या खबर है? कहाँ तो बेहाल है, देखो मैं सर खुजला खुजला के परेशान हो गया, मेरे सर में बाल नहीं है, लोग मुझे घिन करते हैं, मुझे लोग गंजा गंजा करके पुकारता है, लोगों की मजलिस में मैं बैठ नहीं पाता हूँ, जा नहीं पाता हूँ, लोग मुझे बुलाते भी नहीं है, अगर मैं बैठ भी जाता हूँ उनसे दूर हो जाता है। ये बहुत परेशानी की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मैं मेरी बीमारी को ठीक कर दे, मेरे सर में बाल उग जाए, तो मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार बनूंगा, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, अल्लाह से ये बीमारी मुझे दूर करा दीजिए। और फरिश्ते ने उसके सर में हाथ को फिरा, उसके सर में बाल उग जाता है, वो अच्छा हो जाता है, यार स्टाइल उनका अच्छा हो जाता है, देखने में लुकिंग उसका बढ़िया हो जाता है, वो आदमी खुश हो जाता है। फरिश्ते उसे पूछता है, चलो तुम्हारी बीमारी को अल्लाह ने ठीक कर दिया, दूर कर दिया, माल में से कौन सा माल तुम्हें चाहिए? का माल मुझे चाहिए, मुझे एक गाय चाहिए, गाय की मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि उस गाय को मैं पालूं, पोसूं, बड़ा करूं और उसी के जरिए से मैं मालदार बन जाऊं, मेरी ख्वाहिश ही है। उस फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से ये गाभिन गाय उसे अता कर देता है, दे देता है और दुआएं देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको मालदार बना दे, तुम्हें दौलतमंद बना दे, इसके जरिए से तुम्हें मालदार बन जाओ, इसके जरिए से तुम शोहरत पा जाओ। वो दुआ देकर वो फरिश्ते वहां से तीसरे आदमी के पास जाता है। और ये फरिश्ते तीसरे आदमी था, वो अंधा आदमी था, अंधा इंसान के पास ये फरिश्ते जाते हैं, सलाम करते हैं, पूछते हाल खैरात पूछते हैं, कहते भाई बड़ी ठोकरें लगती है, आंख नहीं है, चलता हूं, गिर जाता हूं, दीवार यहां सामने से टकरा जाता हूं, बहुत परेशानी होती है, अल्लाह मुझे आंख अगर अता कर देता है तो अल्लाह का मैं शुक्रगुजार बनूंगा, अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि मेरी आंख ठीक हो जाए, मेरी बीमारी वापस आ जाए, मैं रब से यही मांगता हूं, मेरा यही सवाल आपसे है कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, बहुत बड़ी परेशानी में भी पड़ा हुआ। वो फरिश्ते उसके मुंह में दस्ते सफा को फिरता है, हाथ को फिरता है, उसको बीमारी वापस आ जाती है, वो देखने लगते हैं, उसकी रोशनी वापस आ जाती है, उसकी आंख ठीक हो जाती है। और ठीक होने के बाद फिर फरिश्ते पूछते हैं, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, कौन सा माल तुम पसंद करते हो, कौन सा माल तुम अल्लाह से लेने के लिए सवाल करते हो, मांगो अल्लाह तुम्हें पूरा करेगा। कहा मेरी ख्वाहिश है, एक छोटी सी ख्वाहिश मेरी यही है कि मेरे पास एक बकरी हो जाए, मैं बकरी की ख्वाहिश करता हूं। उस फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से, हदीस में आया है कि उसे एक बकरी अता कर दी अल्लाह के हुक्म से, वो आदमी उस बकरी को लेकर खुश हो जाता है और वो फरिश्ते वहां से चले जाते हैं, 3 आदमी की बीमारी को ठीक कर देता है और ठीक करने के बाद उसे दुआएं देता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमाए, तुम मालदार बन जाओ। साल गुजर गया, कई साल गुजर गया, अल्लाह ने इतनी रेल फेर दे दी, इतनी दौलत अता कर दी कि कोड़ी के ऊंट से पूरा जंगल भर गया, गंजा के बैल से, गंजे के गाय से पूरी जंगल भर गया और अंधे के बकरियों से पूरा जंगल भर गया। तीनों की जानवर इतने बढ़ गए कि पूरे जंगल में ये जानवर नजर आता था। ये तीनों बहुत बड़े मालदार हो गए, अल्लाह को भूलने लग गए। अल्लाह ने कहा नहीं सकर तुम लाजीदाना को, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं और बढ़ा दूंगा, वलाइन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। साल गुजर गए, मालदार बन गए, इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई। अल्लाह ने कहा फरिश्ते जाओ देखो तो इम्तिहान तो ले लो उसका। उन्होंने काना था, जलील था, लाचार था, बेबस था, बीमारी को मैंने ठीक कर दी, दौलत मैंने अता कर दी, अब जाके एक बार इम्तिहान तो लेके आ जाओ।
फरिश्ते इम्तिहान के घर से पहले आदमी के पास जाता है और कहता है मेरे भाई मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, मुफलिस हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, किराए के लिए रुपये नहीं है, आप ऐसा कर दो, अल्लाह ने तुझे दौलत अता कर दी है, तुम्हारी बीमारी को भी ठीक कर दिया है, तुम्हें अल्लाह ने ऊँट से तुम जंगल को भर दिया है, एक ऊँट मुझे दे दो ताकि मैं उसे बेच बाच के अपनी जरूरत को पूरा करूं, किराया अदा करूं और घर तक पहुंच जाऊं। एक ऊँट अल्लाह के हुक्म से दे दो। और याद भी दिलाया तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, गरीब था, लाचार था, बीमार था, बीमारी भी अल्लाह ने दूर किया है और दौलत भी तुम्हें अल्लाह ने अता की है, तो एक ऊँट अल्लाह के नाम से मुझे दे दो। कहा चलो निकल जाओ, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं आज का मैं कभी बीमार पड़ा ही नहीं था, मैं कभी बीमार पड़ा ही नहीं, तो अल्लाह मुझे कैसे ठीक किया। और सुन लो, ये जो दौलत मेरे पास है, ये दौलत तो मेरे दादा से परदादा से चला आ रहा है, मेरा परदादा, मेरा दादा, मेरा बाप सब कोई मालदार थे, वही मालदारी हमें भी मिली है। और अब हम कब गरीब थे, हमारी बेइज्जती करने के लिए आए हो, भागा यहां से, दफा हो जा, चल यहां से चल जाओ। रब ने मुझे कभी बीमारी ठीक नहीं किया और ना ही मुझे दौलत की है, तुझे देने के मैं ले कुछ भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, लाचार हूं। वहां से फरिश्ते वहां से गुजर जाते हैं। फिर दूसरे आदमी के पास जाता है जिससे बैन लगा क्या था कि भाई मैं मुसाफिर हूं, लाचार हूं, बेबस हूं, मैं मुसाफिर हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक गाय तो मुझे अता कर दो ताकि मैं बेच बाच के मैं अपनी सफर को पूरा कर सकूं। कहा नहीं, ये तो मौत जो है, हम कभी गरीब था ही नहीं, ये मौत जो मुझे मिली है बाप दादा से मुझे मिला है, और कभी मैं बीमार था ही नहीं, कभी गंजा था ही नहीं। कहा भाई तू गंजा था, फरिश्ते ने तुझे दुआ किया था और ठीक हुआ था, तो हमें एक अल्लाह के वास्ते दे दो। कहा नहीं, ये सारी बात गलत है, तुम यहां से निकल जा, दफा हो जा। वहां से फिर जाता है, एक दो आदमी इनकार कर देता है, भूल जाता है कि मैं पहले क्या था, मैं बीमार था, मैं गरीब था, उस चीज को ये भूल जाता है। तीसरे आदमी के पास जाता है, कहता है भाई तू गरीब था, लाचार था, तू अंधा था, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने तुम्हारी आंख को ठीक किया है, तुम गरीब था, अल्लाह ने तुझे एक बकरी अता किया था और उसी बकरी के बदौलत अल्लाह ने इतनी बकरियां तुझे अता कर दी है। कहा भाई तू ठीक कर रहे हो, मैं बहुत ही गरीब था, एक बकरी की बदौलत हमें अल्लाह तबारक व तआला इतनी दौलत अता कर दी है, और मैं आंख से अंधा था, देखने के काबिल नहीं था, ठोकर लगती थी, चलने के काबिल नहीं था, दीवारों में सर्फ लगता था, आज मुझे इज्जत मिली है, शोहरत मिली है, दौलत मिली है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वजह से मिली है। मेरे भाई मुझे शर्मिंदा ना करो, एक बकरी ना मांगो, आप ऐसा करो, ये सारी बकरी अल्लाह की दी हुई नियामत है, इन सारी बकरी अल्लाह ने मुझे अता की है, आप चले जाओ, एक बकरी नहीं, 10 बकरी नहीं, 50 बकरी नहीं, 100 बकरी नहीं, आपको जितनी बकरियां चाहिए अल्लाह के वास्ते आप ले जाओ, ये अल्लाह की नियामत है, अल्लाह की दिया हुआ है, ये बकरी ले जाओ और अपनी जरूरत को पूरा करो। उस फरिश्ते ने कहा बंदा मैं भूखा नहीं हूं, न मुसाफिर हूं, न अल्लाह भूखा है, हमें तो तुझे जांचना था, इम्तिहान लेना था, दो आदमी इम्तिहान में फेल पड़ गया, नाकाम हो गया, और तू अंधा, तू पास हो गया। अल्लाह कहता है बोला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह तुम्हारी दौलत में और इजाफा कर देगा। तुमने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह की नियामतों को याद किया, ए बंदा अल्लाह को तुम्हारी बकरी की जरूरत नहीं है, हमको भी तेरी बकरी की जरूरत नहीं है, मैं भूखा नहीं हूँ, मैं मुसाफिर नहीं हूँ, और मुझे अल्लाह ने दिया है, तुम्हारे पास मांगने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी इम्तिहान लेना चाहता हूँ। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अगर हम अल्लाह की शुक्रिया अदा करेंगे, नियामतों को शुक्रिया अदा करेंगे तो बहुत सारा अल्लाह बढ़ा देगा। अगर हम ना शुक्रिया करेंगे तो ये 1 मिनट के अंदर उसकी पूरी दौलत को अल्लाह खत्म कर सकता है। तो अल्लाह की नियामतों को अगर हम लिखना चाहे, कुरान कहता है कि अल्लाह की नियामतों को आप लिखना अगर चाहे तो आप लिख नहीं सकते हो। कुरान कहता है कि दुनिया के अंदर जितने पानी है, आप जो पढ़े लिखे हजरात इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, इस दुनिया के अंदर 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा खुश्की है, यानी 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा खुश्की है। उन तमाम पानियों का अगर स्याही बना दिया जाए, रोशनियां बना दिया जाए, दावत बना दिया जाए, यानी समुद्र का पानी, दरिया का पानी, नहर का पानी, गड्ढे का पानी, कुएं का पानी, तालाब का पानी, ट्यूबवेल का पानी, इन तमाम पानियों का अगर स्याही बना दिया जाए, एक बना दिया जाए, दावत बना दिया जाए और उससे
उससे रब की रहमतों को लिखना चाहे, रब की नियमतों को लिखना शुरू कर दिया जाए, रब की रहमतों को लिखना शुरू कर दिया जाए, वो तमाम पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन रब की रहमतों को लिखकर खत्म नहीं किया जा सकता। और ये बात नहीं, मैं नहीं कहता, सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर साफ फरमा दिया, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी लनफजल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी। ये तमाम पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन रब की रहमतों को, नियमतों को लिख के आप खत्म नहीं किया जा सकता।